आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। सबको स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्ण, सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 24, अध्याय 3, श्लोक संख्या 24। सभी श्लोक रिपीट करिए। उत्सीदेयुरिमे लोका उच्चिदेयोर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यं कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्तृत्याम् उपहन्यामिमा प्रजा। उपहन्यामि महाप्रजा। उत्सीदेयुरिमे लोका उच्चिद्योर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्म्यं कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्तृत्याम् उपहन्यम इमा प्रजा। उपहन्यम महाप्रजा। तो जी आपकी आवाज थोड़ा बहुत लो आ रही है। उत्सीदेयुरिमे लोका उच्चिदेयोर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्तृत्याम् उपहन्याम इमा प्रजा। उपहन्यामि महाप्रजा। हरे कृष्णा, प्लीज इंग्लिश में पढ़िए, ट्रांसलेशन और परपेट। If I should cease to work, then all this word would be put to generations. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would therefore destroy the peace of all sentient beings. Purport. Varna Shankara is unwanted population which disturbs the peace of the general society. In order to check this social disturbance, there are prescribed rules and regulation by which the population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. When Lord Krishna descends, naturally he deals with such rules and regulation in order to maintain the prestige and necessity of such important performance. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is a general discard of regulative principle, the Lord Himself descends and correct the society. We should, however, note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot intimate Him. Following and intimating are not on the same level. We cannot intimate the Lord by lifting Gordana Hill as the Lord did in His childhood. It is impossible for any human being. We have to follow His instruction, but we may not imitate any time. The Srimad Bhagavatam affirms one should simply follow the instruction of the Lord and empowered servants. Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate the actions. One should not try to drink the ocean of poison and imitations of Lord Shiva. We should always consider the position of the Ishwaras or those who can actually control the movements of the sun and moon as superior.
Without such power, one cannot imitate the Ishwaras who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean. But if any common man try to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who wants to indulge in smoking ganja, that's marijuana, and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death by near, very near. Similarly, there are some pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Lila or dance of love, forgetting the inability to lift Govardhana hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful, but simply follow the instruction, nor should one try to occupy their post without qualification. There are so many incarnation of God without the power of the Supreme Godhead. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. प्लीज हिंदी में पढ़िए. यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा. तात्पर्य: वर्णशंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है. इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है. जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं. भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पद भ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व उन्हीं का है. अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं. किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते. अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते. हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था. ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं. हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए. श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है. मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए. उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा. फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे. उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए. हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए. ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता. शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा. शिवजी के अनेक क्षय भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं. इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अनेक क्षय भक्त हैं जो भगवान की रासलीला तथा प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत धारण नहीं कर सकते. अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए. ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. जय शिला प्रभुपाद. तो यहाँ पे इस श्लोक में शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें गुरु को पहचानना पड़ेगा और गुरु को पहचान कर ही हम भगवान को समझ पाएंगे, क्योंकि गुरु का डेफिनेशन चैतन्य चरितामृत के हिसाब से जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि वह विप्र की न्यासी शूद्र के नाया जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है.
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सन्यासी है या गृहस्थी है या शूद्र ही क्यों न है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण भगवान को तत्व से जानता है उसी को गुरु मान सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि श्री कृष्ण को, भगवान को तत्व से जानने वाले इस युग में जो सबसे बड़े तत्ववेत्ता है वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। और उनके जो ग्रंथ है, उनके जो तात्पर्य है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कृष्ण का जो तत्व है वो प्रभुपाद जी से ज़्यादा अच्छी तरह कोई समझा नहीं सकता। जैसे अगर हम गुरु परंपरा का अध्ययन करें तो हमारी गुरु परंपरा आती है चैतन्य महाप्रभु से, जो स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्त का रूप लिया था कलयुग में, और वो स्वयं भगवान है। पर कलयुग में उन्होंने भक्त का रूप लेके यहाँ पे संसार में आए हैं, प्रकट हुए हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जो पंच तत्व है उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, पर वो भक्त का रूप लेकर आए हैं, भक्त का अवतार लेकर आए हैं, भक्त अवतारम। तो भक्त रूपम भक्त पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु है, भक्त स्वरूप में नित्यानंद प्रभु है, भक्त अवतार के रूप में अद्वैत आचार्य हैं, भक्त आख्यम मतलब भक्त भक्त की तरह जो जाने जाते हैं वो गदाधर पंडित हैं, और भक्त नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्तों को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो नारद मुनि जो है वो श्रीवास आचार्य के रूप में आए हैं। तो ये पंच तत्व है। यहाँ से हमारा परंपरा आता है। हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये वहाँ से आती है। उसी परंपरा में अगर हम स्टडी करें अच्छे से तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम बताई है। उन्होंने अपने संपूर्ण शिक्षाएं केवल 8 श्लोकों में हमको दे दी है, जिसको शिक्षाष्टकम कहते हैं। अब उन्हीं 8 श्लोकों को एक्सपांड करके, मतलब उन्हीं 8 श्लोकों पे और ज़्यादा विस्तार से ज्ञान दिया है षड गोस्वामियों ने, तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। खास करके जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं केवल 8 श्लोक के ऊपर। जो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए थे उस पे उन्होंने इतने सारे विस्तार से ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद हमारे परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, इन सब ने भी विस्तार से व्याख्या की। जो षड गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे थे उस पे उन्होंने और विस्तार से लिखा। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद, उनसे भी पहले उनके जो पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत सारे भजन और ग्रंथ लिखा है। फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, उन्होंने इतना विस्तार से लिखा। और फिर अंत में शिला प्रभुपाद जी ने लिखा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो इस परंपरा में आखिरी आचार्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला है कि जो कुछ बोलना है और जो कुछ बोलने योग्य है वो मैंने लिख दिया है और बोल दिया है। अब इसके आगे ना कुछ लिखने की ज़रूरत है ना कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो मतलब कि ये फाइनल है। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है ये फाइनल हमारे लिए रेफरेंस है। इसके आगे ना तो कुछ बोलने की ज़रूरत है ना कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो अगर हम सिर्फ इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, और प्रभुपाद जी ने यही बोला है कि जो भी मेरे ग्रंथ पढ़ता है, जो 16 माला करता है, 4 नियम का पालन करता है, रोज़ मेरे लेक्चर सुनता है और किसी तरह से कुछ सेवा करता है, या तो प्रचार में मदद करता है या मंदिर में सेवा करता रहता है, तो उनको प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला है कि ये सब मेरे शिष्य हैं और इसी तरह से परंपरा आगे बढ़ती जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं अपने ग्रंथों के लिए जिंदा रहूंगा, आई विल लिव फॉर माई बुक्स। तो मतलब प्रभुपाद जी अभी भी जिंदा है
और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला है कि मैं अपने ग्रंथों के लिए हमेशा ज़िंदा रहूँगा। आई विल ऑलवेज़ लिव फॉर माय बुक्स। तो आध्यात्मिक गुरु जो है वो सनातन होता है, वो शाश्वत होता है। और प्रभुपाद जी भी सनातन है, शाश्वत है, अभी भी जीवित है अपने ग्रंथों के लिए। और जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं और उस पे चर्चा करते हैं और प्रश्न उत्तर करते हैं, तो प्रभुपाद जी साक्षात हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये हमको अनुभव धीरे धीरे होने लगता है कि जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ ध्यान से पढ़ते हैं और उनको फॉलो करने का ट्राई करते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी साक्षात हमारे साथ बैठे होते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, तो यहाँ पे ये जो शब्द आता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमें समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भगवान कृष्ण की जो बातें हैं, भगवान कृष्ण का जो तत्व है, उसको समझना पड़ेगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये असंभव है कि हम लोग समाज में शांति ला पाएंगे या कुछ व्यवस्था ला पाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। तो सबसे पहले तो गुरु को पहचानना पड़ेगा। गुरु कौन है? गुरु शिला प्रभुपाद है। और गुरु हमको कृष्ण तत्व बता रहे हैं। तो कृष्ण तत्व हमको अच्छे से समझना है शिला प्रभुपाद से। और जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है, भगवान समस्त जीवों के पिता है, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। तो जैसे भगवान हम सबके पिता हैं, उसी तरह गुरु भी हम सबके पिता हैं। वेदों में एक श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसका अर्थ ये होता है कि जिस तरह हमारी भक्ति भगवान के लिए होती है, उसी तरह हमारी भक्ति गुरु के लिए होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो श्रीला प्रभुपाद जी हम सबके पिता हैं और हम सबके गुरु हैं। और हमको उनके बताए गए नियमों का, उनके द्वारा बताए गए जो आदेश है, उसका हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अब अनुसरण और अनुकरण एक नहीं होते, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद जी गुरु के रूप में व्यासासन पे बैठते थे, और गुरु के रूप में शिष्य उनकी पूजा करते थे, और उनके चरण भी धोते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, उनके चरणों का अभिषेक करते थे, उनके चरणामृत को पीते थे। और प्रभुपाद जी ने इसको अलाउ किया क्योंकि वो आचार्य हैं, परंपरा के द्वारा भेजे गए, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए सेनापति भक्त हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारी प्रगति के लिए ये सब अलाउ किया कि हम उनको व्यासासन पे बिठा के उनकी पूजा कर सकते हैं गुरु की तरह, और उनके चरणों को धो सकते हैं, उनके चरणामृत को पी सकते हैं। तो ये गुरु कर सकता है। तो प्रभुपाद जी के जो बुक्स है और उनके जो आदेश है, उसको हमें अनुसरण करना है। अब अनुसरण और अनुकरण, ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इसको ध्यान से समझना होगा। अनुसरण मतलब कि प्रभुपाद जी के वाक्यों को पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, उनको गुरु मानना है। और अनुकरण मतलब कि हम अगर खुद व्यासासन पे बैठ जाएं और हम खुद को गुरु बोलने लगे, और हम खुद की पूजा करवाने लगे, और हम फिर बोलने लगे कि अब सब मेरे शिष्य बन जाओ, इसको बोलते हैं अनुकरण। तो अनुसरण और अनुकरण, तो अनुकरण बहुत डेंजरस। आज के समय में प्रभुपाद जी के होते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, और व्यासासन पे बैठते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी व्यास पूजा कराते हैं, और अपने आप को गुरु की तरह पेश करते हैं। तो इसको कहते हैं अनुकरण, मतलब कॉपी करना, इमिटेट करना, प्रभुपाद जी को इमिटेट करना। तो ऐसे इमिटेट करने वाले, अनुकरण करने वाले अभी हजारों गुरु बन गए हैं, और ये सब अनऑथोराइज्ड। प्रभुपाद जी ही ऑथोराइज्ड गुरु हैं।
और हमें उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो अनुसरण मतलब कि प्रभुपाद जी व्यासासन पे है और इसीलिए प्रभुपाद जी के विग्रह होते हैं हर एक इस्कॉन मंदिर में। तो व्यासासन पे प्रभुपाद जी बैठते हैं और कोई नहीं बैठता है। और व्यास पूजा भी प्रभुपाद जी की होती है, गुरु पूजा भी प्रभुपाद जी की होती है। सुबह सुबह उठ के हम जो गुरु वंदना गाते हैं, तो उसके एंड में हम जय प्रभुपाद बोलते हैं, तो वो प्रभुपाद जी को ही ऑफर होता है। फिर करीब 7 या 8 बजे हम फिर से गुरु पूजा करते हैं, तो वो भी प्रभुपाद जी का ऑफर होता है। और फिर हम दिन में कम से कम 3 बार उनकी वंदना करते हैं, ध्यायंस्तु वंश तस्य यशस्त्री संध्यम, तो वो भी प्रभुपाद जी का ऑफर होता है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया था, तो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में हरे कृष्णा का आंदोलन फैला दिया। तो ये भी कोई गोवर्धन पहाड़ उठाने से कम नहीं है। आज के समय में जो व्यासासन पर बैठते हैं और जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, वो प्रभुपाद जी की तरह प्रचार नहीं कर सकते पूरी दुनिया में। वो बस उनकी किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली सब जगह पे प्रभुपाद जी की किताबें बांटी जाती है, बट उनका फायदा उठा के कुछ लोग व्यासासन पे बैठ जाते हैं। तो वो अनुकरण है, वो अनुसरण नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया है यहाँ पे कि कोई उनको कॉपी नहीं कर सकता। जिस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, शंकर भगवान ने जहर पी लिया था, और प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े लेवल पे पूरा इस्कॉन का प्रीचिंग किया, स्थापना की। तो प्रभुपाद जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो सुपर पावरफुल है और अति मानवीय है, मतलब कोई मानव ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को आप अनुकरण नहीं कर सकते, उनकी जगह नहीं ले सकते। आपको उनके चरणों में रहना है, प्रभुपाद जी के चरणों में रहना है। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन